وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہسپتالوں کی بہتری کا مشن، ادویات کی خریداری کے لیے خصوصی اتھارٹی بنانے کی تجویز پیش کی گئی۔ محسن نقوی نے شفاف طریقہ کار وضع کرنے کا حکم دے دیا۔ کی جانب سے ہسپتالوں میں معیاری ادویات کی فراہمی جلد یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی، جبکہ ادویات کی خریداری کا شفاف طریقہ وضع کرنے کا حکم دیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ ادویات کو سٹور کرنے اور ہسپتالوں تک پہنچانے کے لیے فول پروف اور برق رفتار نظام واضح کیا جائے۔ ادویات کی خریداری اور سٹوریج کی مینجمنٹ سکل ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ادویات کی خریداری، سٹوریج اور ہسپتالوں کو فراہمی کے لیے فول پروف سسٹم تیار کیا جائے۔ علاج کے لیے بہترین ادویات ہر شہری کا حق اور حکومت کا فرض ہے۔ دوسری جانب ٹیچنگ ہسپتالوں کی تزئین و آرائش اور سہولیات کے لیے 100 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے، جبکہ ہسپتالوں میں صفائی، واش رومز کی دوبارہ تعمیر سمیت دیگر منصوبے مکمل کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت نے ٹیچنگ ہسپتالوں کی حالت زار بہتر کرنے کا منصوبہ تشکیل دے دیا ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے 1 ارب روپے رواں مالی سال کے بجٹ میں مختص کر دیے گئے ہیں۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں مسنگ فیسلٹیز کو پورا کیا جائے گا۔ انفیکشن کنٹرول، واش رومز کی مرمت، طبی آلات اور مشینری کی دستیابی سمیت دیگر سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا میو ہسپتال میں زیر تعمیر کیفیٹیریا کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کیفیٹیریا کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری تعمیرات و مواصلات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی، جبکہ محسن نقوی نے کیفیٹیریا کے مختلف حصے دیکھے اور جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ کیفیٹیریا کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے کہا گیا، کیفیٹیریا میں شہریوں کے لیے سہولتوں کو بہتر بنایا جائے۔ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا میو ہسپتال میں زیر تعمیر کیفیٹیریا کا دورہ، جبکہ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے کیفیٹیریا کے تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری تعمیرات و مواصلات نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو بریفنگ دی، جبکہ محسن نقوی نے کیفیٹیریا کے مختلف حصے دیکھے اور جلد تکمیل کی ہدایت کی۔ محسن نقوی کی جانب سے کہا گیا، کیفیٹیریا کو جدید تقاضوں کے مطابق ہم آہنگ کیا جائے۔ کیفیٹیریا میں شہریوں کے لیے سہولتوں کو بہتر بنایا جائے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں، لاہور کے تاریخی دروازوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کی منظوری۔ دوران ملازمت انتقال کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کو خصوصی پیکج دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ صوبائی وزراء SM تنویر، منصور قادر اور عامر میر نے شرکت کی۔ کی زیر صدارت اجلاس میں دوران ملازمت انتقال کرنے والے ملازمین کے اہل خانہ کو خصوصی پیکج دینے کا اصولی فیصلہ کیا گیا۔ وفات پانے والے ملازمین کے اہل خانہ کو 10 دن میں امدادی رقم ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اجلاس میں لاہور اور فیصل آباد کی واسع زمین بہتری کے لیے فرانسیسی ایجنسی فار ڈیولپمنٹ سے معاونت دی جائے گی۔ لاہور کے تاریخی دروازوں کو اصل حالت میں بحال کرنے کے پروگرام کی بھی منظوری دی گئی ہے، جبکہ لاہور چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی۔ فلڈ پروٹیکشن سیکٹر پروجیکٹ 3 کو سالانہ ترقیاتی پروگرام 2023 سے 24 میں شامل کر لیا گیا۔ روڈا ایک اور بڑا رہائشی منصوبہ شروع کرے گی۔ 12,000 ایکڑ پر رہائشی اور کمرشل تعمیرات ہوں گی۔ جگہ کے تعین کے لیے بین الاقوامی کمپنی سے معاہدہ کیا گیا۔ منصوبے کو ٹوپاز بلاک کا نام دیا گیا ہے، جبکہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل کاشف قریشی کہتے ہیں 1 ارب کے ترقیاتی منصوبے کا کام جلد شروع کیا جائے گا۔ ٹوپاز بلاک کے نام سے ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی رہائشی اور کمرشل منصوبہ بنائے گی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کمرشل کاشف قریشی کا کہنا ہے کام جلد شروع کیا جائے گا۔ 1 ارب روپے سے زائد کے منصوبے کے لیے روڈا نے جگہ کا تعین کر کے بین الاقوامی کمپنی سے معاہدہ کر لیا ہے۔ ٹوپاز بلاک کے لیے راوی سائفن سے ملحقہ جگہ کا تعین کیا گیا ہے۔ منصوبے کے تحت روڈا شہریوں کو بین الاقوامی طرز زندگی فراہم کرے گا۔ ترقیاتی کام کا افتتاح رواں مالی سال میں کر دیا جائے گا۔ لیسکو صارفین کے لیے خوشخبری، خراب اور جلنے والے سنگل اور 3 فیز میٹر تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 3,952 سنگل جبکہ 3,387 3 فیز میٹر جاری ہوں گے۔ ڈائریکٹر کسٹمر سروسز رائے اصغر کا چیف انجینئر میٹیریل مینجمنٹ کو مراسلہ ارسال۔ کسٹمر سروسز رائے محمد اصغر کی جانب سے بھجوائے گئے مراسلے کے مطابق 3,952 سنگل فیز اور 3,383 3 فیز میٹر جاری کرنے کی استدعا کی گئی۔ شہر میں ناردرن سرکل کے لیے 184 سنگل فیز، 54 3 فیز میٹر، سینٹر سرکل کے لیے 1,484 سنگل فیز اور 1,087 3 فیز میٹر جاری کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ایسٹرن سرکل کے لیے 216 سنگل فیز جبکہ 84 3 فیز میٹرز کی ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ صدرن سرکل کے لیے 866
3 फेज मीटर जारी करने के लिए कहा गया है। लेस्को रीजन के दीगर इलाकों के लिए भी मीटर्स की डिमांड की गई है। शहर की ओपन मार्केट के साथ साथ यूटिलिटी स्टोरों पर भी महंगाई का तूफान। चीनी 5 रुपए किलो मजीद महंगी हो गई, जबकि गरीब तबके के लिए गुजर औकात करना मुश्किल हो चुका है। शहर की ओपन मार्केट में बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी। चीनी की मिठास को भी महंगाई का तड़का लग गया। 5 रुपए बढ़ने से चीनी 165 रुपए किलो की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई इतनी है, खाना खाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पर भी वही रेट ही है, तकरीबन 150 रुपए किलो यहाँ पर चीनी, वो भी नहीं है। आप देख सकते हैं वहाँ पर है ही नहीं है। वो महल्ले से लेते हैं, कोई 250 रुपये दे रहा है, कोई 180 रुपये दे रहा है। गरीब आदमी किधर जाए? अब तो रोटी खानी भी जो है ना, गरीब आदमी को एक रोटी मिलती है वो भी नहीं अब मिल रही। उधर गरीब की यूटिलिटी स्टोर से भी खरीदारी की सक्कत ना रही। जब से यूटिलिटी स्टोर पर अशिया ज़रूरिया की कीमतें दुगनी हुई, गरीब शहरी सस्ते राशन खरीदने से महरूम है। यूटिलिटी स्टोर पर 10 किलो आटे का थैला 1281 रुपए, चीनी 146, घी और ऑयल की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी का कहना है सूबाई और वफाकी हुकूमतें मिलकर महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम करे, ताकि खित्ता गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले तबका अशिया ज़रूरिया खरीदने के काबिल हो सके। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42, लाहौर। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 35 पैसे महंगा होकर 297 रुपये 13 पैसे का हो गया, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपये महंगा होकर 304 रुपये पर पहुंच गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंटर बैंक में डॉलर 295.78 रुपए से बढ़कर 297 रुपए 13 पैसे पर बंद हुआ। माहिरीन के मुताबिक दरामदी बिल की तलब पर रुपए की कदर में कमी देखी जा रही है। दूसरी जानब इंटर बैंक के बाद ओपन मार्केट में भी डॉलर महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए महंगा होकर 304 रुपए पर पहुंच गया, जबकि ओपन मार्केट में यूरो 4 रुपए इजाफे से 332 रुपए का हो गया। बरतानवी पाउंड 6 रुपए इजाफे से 391 रुपए, अमारती दिरहम 50 पैसे महंगा होकर 84 रुपए और सऊदी रियाल 1 रुपए महंगा होकर 81.50 रुपए पर पहुंच गया। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा के ऑनलाइन तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। 21,687 असातिज़ा ने तबादलों के लिए अप्लाई किया था। सिर्फ 9,474 को तबादलों की मंजूरी मिली। 12,000 दरखास्तें मुस्तरद कर दी गयी। 28 जुलाई से 6 अगस्त तक असातिज़ा के तबादलों के लिए दरखास्तें तलब की गयी थी। असातिज़ा के ऑनलाइन तबादलों के ऑर्डर्स वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। डीसी ऑफिस में करोड़ों रुपए से लगाई गई पार्किंग मशीन एक बार फिर चले बगैर नकारा होगी, जबकि इचरा सर्विसेज और न्यू अस्पताल में नस्ब रोटरी पार्किंग मशीनें भी बेकार हो गईं। निगरान वजीर के पार्किंग मशीनों को ऑपरेशनल करने के अहकामात पर अमल न हो सका। कंपनी ने पार्किंग के मसाइल हल करने के लिए चंद साल कबल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 5 रोटेटरी पार्किंग मशीनें लगाई थीं, जिन पर 8 करोड़ रुपए के करीब लागत आई थी। 1.5 करोड़ रुपए से जायद की लागत से डीसी ऑफिस में पार्किंग की मशीनें लगाई गई थीं। साबिक डीसी साले सईद के दौर में इफ्तिताह हुआ, ताहम इफ्तिताह के बाद से अब तक मशीनें एक बार भी ऑपरेशनल न की गयी। इलेक्ट्रिक तारें, कैमरे और सेंसर्स खराब हो चुके हैं। डीसी ऑफिस में पार्किंग के मसाइल के बावजूद मशीनें ऑपरेशनल नहीं की जा सकी, जबकि इचरा सर्विसेज और मियो अस्पताल में नस्ब रोटेटरी पार्किंग मशीनें भी अरसा दराज से नाकारा हो चुकी हैं। निगरान वजीर इब्राहिम मुराद ने कुछ अरसा कबल पार्किंग मशीनों को ऑपरेशनल करके रिपोर्ट पेश करने के अहकामात भी जारी किए थे, ताहम इनके अहकामात पर ताहाल अमल नहीं किया जा सका। लाहौर हाई कोर्ट से परवेज इलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। 2 रुकनी बेंच ने सिंगल बेंच के परवेज इलाही को नामालूम मुकदमात में गिरफ्तार न करने के हुक्म के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील खारिज कर दी। मोहम्मद वहीद खान और जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने पंजाब हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की जानिब से एडवोकेट जनरल इसहाक और परवेज इलाही की जानिब से बैरिस्टर अली जफर समेत दीगर वकला पेश हुए। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने एडवोकेट जनरल से कहा कि सूबा पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में सिर्फ एक फिक्रे का फर्क है, दोनों सूरतों में दलाइल तो आप ही ने देने हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने दरखास्त के काबिल समाअत न होने पर दलाइल दिए। एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए अदालती फैसले का हवाला भी दिया और कहा सिंगल बेंच ने आर्टिकल 199 से बहुत बाहर निकलकर स्पेशल रिलीफ दिया है। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान ने कहा खास हालात में खास फैसले करने पड़ते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी का जमेल टाउन में वाक़या जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा। 18,800 लीटर जाली बोतलें तल्फ कर दी गई। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीमों की जानिब से खुफिया इतला पर जमीन टाउन में वाक़े जाली कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यूनिट पर छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान 18,800 लीटर जाली बोतलें, 1250 किलो चीनी, 130 किलो ममनुआ अज्जा, खाली बोतलें, ड्रम, ढक्कन और जाली लेबल बरामद हुए। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक 17 सिलेंडर्स, फिलिंग मशीनें, कंप्रेसर, चूल्हे भी जब्त कर लिए गए हैं। यूनिट में खुले रंगों, केमिकल्स और गैर फिल्टर शुदा पानी से जाली बोतलें तैयार की जा रही थीं। मारूफ ब्रांड्स के जाली लेबल लगी बोतलें बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। जालसाजी का मकरू धंधा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म ख्वाजा अहमद हसान की मुलाकात हुई। मौजूदा सियासी सूरत हाल और तालीम के शोबे के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सीनियर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसान ने एचिसन कॉलेज के बोर्ड की बेहतरी के लिए तजावीज़ भी पेश की। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने कहा कि तालीम के शोबे में मेरिट को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। तालीम के साथ साथ नौजवान नस्ल की किरदार साजी का पहलू भी बहुत अहम है। ख्वाजा अहमद हसान ने कहा कि एचिसन कॉलेज एक तारीखी और कदीम तालीमी इदारा है। उसकी तामीर और तरक्की और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करूँगा। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत चलने वाले इदारों में गवर्नर पंजाब ने मुस्बत और अहम किरदार अदा किया है। गवर्नर पंजाब ने बतौर चांसलर पंजाब की तालीम बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए हैं, जिनमें प्रो वाइस चांसलर्स का तकर्रुर अहम इकदाम है। CCPO लाहौर बिलाल सदी कमियाना की ज़ेर सदारत डिवीजनल SPs की कारकर्दगी के मुतल्लिक़ इजलास हुआ। ज़ेर इल्तवा रोड सर्टिफिकेट्स, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात और नामालूम मुल्ज़िमान के हवाले से कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। CCPO ने अफसरान के नाकिस कारकर्दगी पर इजहार नाराज़गी किया। CCPO ने इजलास में अफसरान को कारकर्दगी बेहतर करने की हिदायत की। मुकदमात जल्द से जल्द निपटाने का हुक्म दिया। बिलाल सदी कमियाना का कहना था कि फ़राइज़ में गफलत और अदम दिलचस्पी काबिल कबूल नहीं। SDPOs, SHOs इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की नाकिस कारकर्दगी पर मुतल्लिका SPs भी जवाबदेह हैं। इजलास में DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी, DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर ने शिरकत की। दूसरी जानिब आपको बताते चलें, वज़ीर आला पंजाब के थानों के दौरों के बाद पुलिस अफसरान भी मुतहरिक हैं। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी का थाना इकबाल टाउन का दौरा, सफाई के बेहतर इंतजामात ना होने पर बरहमी का इजहार किया। अली नासिर रिजवी ने थाना इकबाल टाउन में सफाई के निज़ाम को चेक किया, फ्रंट डेस्क, हवालात और दीगर सेक्शंस का मुआयना किया। हवालात में बंद मुल्ज़िमान का रिकॉर्ड भी चेक किया। साइलिन से खुश अखलाक़ी से पेश आने की हिदायत की। DIG ने थाने की सफाई ना होने पर अफसरान की सरजनिश की। DIG ने हिदायत जारी की कि CCTV कैमरे फंक्शनल होने चाहिए। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब की पहली स्किल्स पॉलिसी 2023 के मुसवदे की मंजूरी दी गई। मार्केट की ज़रूरत के मुताबिक हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत तैयार की जाएगी। पंजाब स्किल्स पॉलिसी 2023 के मुसवदे का जायज़ा लेने और सिफारशात मुरतब करने के हवाले से तश्कील दी गई। कमेटी का इजलास हुआ, जबकि वज़ीर सनअत व तिजारत SM तनवीर की ज़ेर सदारत टेवटा में इजलास में स्किल्स पॉलिसी 2023 के मुसवदे की मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर मुसवदे की मंजूरी दी गई। लॉ डिपार्टमेंट पॉलिसी के कानूनी पहलुओं का जायजा लेकर मंजूरी के लिए पंजाब काबीना को भिजवाएगा, जबकि पॉलिसी के मुताबिक 3 स्किल टेक्नोलॉजी पार्क बनाए जाएंगे। आजम क्लॉथ मार्केट न्यू कराची ब्लॉक के अहदेदारों की तकरीब हल्फ बर्दारी हुई, जबकि ताजर बरादरी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में हल्फ बर्दारी में सदर आजम क्लॉथ मार्केट मलिक जमान नसीब, चौधरी जाहिद हुसैन, सदर सरबुलंद बुलाक आजम क्लॉथ मार्केट लियाकत सेठी, जिशान जाहिद, जनरल सेक्रेटरी आजम क्लॉथ मार्केट बोर्ड अतहर खान और शेख जावेद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मेहमानान खसूसी ने 9 मुंतखब बॉडी से हलफ लिया। सदर चौधरी उस्मान, जनरल सेक्रेटरी एहसन रजा, सरपरस्ती आला मलिक यासीन, नायब सदर हाजी मोहम्मद जमशेद, सीनियर नायब सदर शेख मुजफ्फर अली और सेक्रेटरी इतलाआत मकसूद अहमद ने हलफ उठाया। तकरीब में इशफाक शाकी, ख्वाजा इजाज, मूनशाह, हैदर भट्ट, इम्तियाज़ खान, मियाँ सईद, शेख आरिफ और हाजी आमिर ने शिरकत की।
पीसीबी लाहौर रीजन सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट के 5वें मरहले के मैचेस फैसला कुन मरहले में दाखिल, जबकि लाहौर नॉर्थ जोन वाइट को ईस्ट जोन ब्लूज के खिलाफ कामयाबी के लिए 114 रन दरकार हैं। मॉडल टाउन क्लब ग्राउंड पर ईस्ट जोन ब्लूज ने अपनी पहली इनिंग में 9 विकेटों के नुकसान पर 233 रन बनाए। अजीम डार 53 और जैनुल हसनैन 33 नॉट आउट के साथ नुमाया रहे, जबकि जवाब में नॉर्थ जोन वाइट की टीम 140 रन बनाकर आउट होगी। हमाद बट 54 और उसामा तारिक 38 रन बनाकर नुमाया रहे। ईस्ट जोन ब्लूज के हुजैफा गिल ने 5 और जैनुल हसनैन ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मैच के आखिरी रोज नॉर्थ जोन वाइट को कामयाबी के लिए 114 रन दरकार हैं। पीसी होटल में एक रोज़ा एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया, जबकि टेनिस स्टार असामुल हक ने बतौर मेहमान एक खसूसी शिरकत की। होटल में एक रोजा एजुकेशन एक्सपो मुनक्किद की गई। ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन ऑफिस की जानिब से तमाम किया गया। अंदरूनी और बैरून मुल्क आला तालीम की ख्वाहिशमंद तलबा और तलबात को रहनुमाई फ्राहम की गई। टेनिस प्लेयर असामुल हक ने तकरीब में खसूसी शिरकत की। उनका कहना था, आजकल की नौजवान नस्ल तेजी से आला तालीम के लिए बैरून ममालिक का रुख कर रही है। के ऑल प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए ताकि हमारे बच्चों को ऑल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें बाहर जाके पढ़ने के लिए, सिर्फ यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में नहीं, बट ऑल कंट्रीज़ के अंदर भी। एंड आई जस्ट रिक्वेस्ट हमारे सारे स्टूडेंट फिर वापस पढ़ के वापस आएँ, पाकिस्तान में आएँ और पाकिस्तान को दें और पाकिस्तान के लिए काम करें। तलबा का कहना था। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।